Good morning. After knowing the meaning of potential difference and current, now we are moving toward the topic called the Ohm's law. This topic is quite important and near about in all the board examination, Ohm's law has been asked. So watch this video and understand this video quite carefully. Ohm's law पोटेंशियल डिफरेंस V और I में रिलेशन को बताता है. पोटेंशियल डिफरेंस V और I के बीच के रिलेशन को बताने वाले लॉ को कहते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट whenever V increases then I will also increase, or in another word we can say that when I increase then V will also increase. So in nutshell, when both the quantities are increasing, if one is increasing and second one is increasing, if first is decreasing and second one is decreasing, that relationship is called directly proportional. जैसे अल्फा का साइन होता है वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा. तो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी लिखते हैं वो दोनों ही इक्वलाइज रहती है. दैट मीन्स इफ दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग then this quantity will also keeps on increasing. That is why Ohm's law says that current passing through any conductor amongst any 2 points is directly proportional to the voltage across 2 points of the conductor. कंडीशन क्या डाली है इन्होंने? इफ कंडीशन डाली है. क्या कंडीशन डाली है? फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम. दैट मीन्स अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ वायर and you are doing experiment at the extreme condition, for example at 50 degrees Celsius, then we come to know that V is directly proportional to I. But whenever you are doing the same experiment at minus 50 degrees Celsius, the result will change. Result change हो जाएगा. So in mathematical expression we are saying that potential difference is directly proportional to the I. Whenever this proportional sign is removed, then there is always a constant, and here the constant is R. This is the constant. जब हमने बीच वाले प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया है तब वहां पर कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट है R. सो हम ये कह सकते हैं दैट V is directly proportional to I and V is equals to R into I, क्योंकि हमने इस प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट से रिप्लेस किया है. यहाँ पर हम बार बार यूज ले रहे हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स जो चेंज नहीं होता है. जो चेंज नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट कहेंगे. ओके. जब कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है तब मैं ये कह सकता हूँ दैट V इज अपॉन I इज इक्वल्स टू R. R कांस्टेंट है. इसका मतलब V बाय I की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर द सेम कंडीशन. कंडीशन सेम रहनी चाहिए. अभी हमने यहाँ बात की है रिमेन सेम. कंडीशन सेम रहेगी तब V अपॉन I का रेशियो हर समय कांस्टेंट रहेगा. जब इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तब V और I के बीच में इस तरह का ग्राफ आएगा. इस तरफ करंट है, इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस V है. V and I is directly proportional, then graph is always be a straight line. This straight line shows that V is directly proportional to I. And again आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है that what does this straight line represent? This represent that V and I are both directly proportional. So अभी हमने देखा Ohm's law, V is directly proportional to I. So we can say that V is equals to R into I, and therefore we can say that R is equals to V upon I. ये सारे relations important है. All these relations are very very important. So इनमें से कोई भी relation miss नहीं होना चाहिए. The key factor V is equals to RI. This is most important factor.
नाउ समझते हैं अब आर क्या है। आर के लिए हम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल। आप इसको ऑब्स्टेकल समझ सकते हैं। हर एक एलिमेंट का, हर एक मटेरियल का ओन रेजिस्टेंस होता है। ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं होगा जिसका खुद का रेजिस्टेंस ना हो। इज दिस क्लियर? इफ यू आर हैविंग कॉपर, कॉपर में रेजिस्टेंस है। इफ यू आर हैविंग आयरन, उसमें रेजिस्टेंस है। इफ यू आर हैविंग एल्यूमिनियम, उसमें रेजिस्टेंस है। हर एक एलिमेंट का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस को सिंपल सा बात समझते हैं कि क्या होगा। जैसे हमारे पास एक वायर है, लेट अस सपोज, और इसके अंदर कौन फ्लो कर रहा है? इसमें फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है वो जब इस पाथ से बाहर निकलेगा तब इसकी स्पीड लिटिल बिट स्लो, तो ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। दिस इलेक्ट्रॉन वांट्स टू मूव आउटसाइड, तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। इसको हम एक बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ डोर। स्कूल का एक कॉरिडोर मान लेते हैं। कॉरिडोर, सॉरी, गेट एंड कॉरिडोर। यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स स्टूडेंट्स, आर ट्राइंग टू पास थ्रू दिस gate. Because this gate is having a limited boundary, that means all the electrons, or to be say students, are not allowed to pass at once. That means यहाँ से निकलने पर आपकी स्पीड कैसे हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। धीरे 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 आप आगे जा पाएंगे। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल provided by any material। कोई भी मटेरियल जब रेजिस्टेंस ऑफर करता है तब उसमें करंट कम फ्लो होगा। मेन थिंग क्या है? करंट कम फ्लो होगा। यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है V इज इक्वल्स टू आई आर। जब हम यहाँ पर देखते हैं V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, आई नीचे की तरफ है और आर ऊपर की तरफ है। ये रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई कम होगा तब आर बढ़ेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कम होगा तब करंट बढ़ेगा। दैट मीन्स इफ वी आर हैविंग अ वायर, अगर इसका रेजिस्टेंस लो है तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और सेकंड, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका सीधा सा मतलब ये है, लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर देखें, ये विड्थ, इस विड्थ को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब मोटाई। इफ विड्थ इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो रिपीटिंग वंस अगेन, R is directly proportional to the length, R is inversely proportional to the cross section area। जब दोनों इक्वेशन को साथ लिखेंगे तो R is directly proportional to L upon A, ये रिलेशनशिप आएगी। R is directly proportional to L upon A। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तब बनेगा R is equals to रो L upon A। इसको, जिसको हम थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड पी जैसा लिखते हैं, इसका नाम होगा रो, RHO, रो। इट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। फाइन। अभी 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 हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है। R रेजिस्टेंस है एंड रो रेजिस्टिविटी है। ये दोनों ही वर्ड कंफ्यूजिंग है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हमको किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगेन यहाँ पर बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी। सो दिस इज द 100% क्वेश्चन। आप कोई भी बोर्ड पेपर उठा कर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा।
रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। It is on the name of the Ohm scientist who derived the relationship, who gave the Ohm's law. उसके बेस पर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। एंड रेजिस्टिविटी की यूनिट हम बाद में डेराइव करेंगे कि किस तरह से वो यूनिट निकलती है। फिलहाल अभी हम रेजिस्टेंस पर ही स्टिक रहते हैं। ओके, अब हम समझ रहे हैं रेजिस्टेंस को। तो पहली बात ये हो गई, रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्टेकल है। किसके अंदर ऑब्स्टेकल है? इन फ्लो ऑफ करंट। जब रेजिस्टेंस ऑफर होता है तब क्या होगा? ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है और करंट स्लो फ्लो होगा। अब इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जहां कहीं से भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है वहां पर हीट इंक्रीज होती है। ये भी अपना टॉपिक लास्ट चैप्टर के लास्ट पोर्शन में आएगा। अभी तक हम सिर्फ ये समझ रहे हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर वायर बहुत लंबा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर वायर बहुत थिक है तब उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। सीधा सा कहने का मतलब है मोर लेंथ, मोर रेजिस्टेंस, करंट विल बी लेस। सेकेंड थिंग, more cross section area, less more cross section area, less resistance and more current। ये बात ध्यान रखने की है। जहां कहीं पर भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है वहां पर करंट कम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के अंदर दो फीचर और होते हैं जो हमारे बुक में नहीं है, समझ लेते हैं। एक, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। डू यू एवर heard about the power cut in the summer season only? It is so because wires are outside and they have to face temperature. टेम्परेचर होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम फ्लो करेगा। दैट इज वाई देर इज अ पावर कट टू मेंटेन द current flow. Okay, and the last one is the nature of material। अलग अलग नेचर होता है मटेरियल का तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस माना जाता है, किसका माना जाता है? यू हैव एनी आइडिया? सिल्वर, Ag, silver is having the least resistance. That means it is the best conductor of current. दैट इज वाई हम सिल्वर को बहुत अच्छा, सिल्वर और गोल्ड भी है, ये भी एक अच्छा कंडक्टर है, बट सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। इनफ फॉर द टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ।